أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلائه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أتعجل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك. صلوات اللہ. ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. عشرہ محرم الحرام سن 1444 ہجری کے سلسلہ مجالس کی چھٹی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ قصر ابو طالب پیر محل میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان کتاب مبین اور تکمیل دین. سبب کامرانی و کامیابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس ذکر سے جڑ گیا، اس قافلے سے متمسک ہو گیا اور حسین کے لیے بچھے ہوئے اس فرش پر بلکہ اس زمین پہ بچھے ہوئے عرش پر آ کے یہ بتلا رہا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ ذکر مٹانے والے تو مٹ سکے مگر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حسین کے ذکر کو باقی رکھا ہے. تھوڑا سا بولتے رہیں گے میرے ساتھ تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا اور بہت مختلف اور بڑی منفرد گفتگو آج آپ کے حوالے کرنے کا دل چاہ رہا ہے. کتاب مبین اور تکمیل دین مسلسل حدیث طیبی کے ذیل میں آپ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی اور آج اسی سلسلے کا چھٹا روز ہے جہاں پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو یہ چاہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، یوسف کو ان کے حسن میں دیکھے، زکریا کو ان کی عبادت میں دیکھے، یحییٰ کو ان کے زہد میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کی منزلت میں دیکھے اور مجھ مصطفیٰ کو بالکل ویسے دیکھے جیسے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اسے چاہیے وہ ابو طالب کے بیٹے کو دیکھے. میرے نوجوان دوست اور بھائی ساتھ دیتے رہیں گے، منزلیں آسان ہوتی رہیں گی. تو اللہ کے نبی نے 90 انبیاء تک کی روایت میں نے کتابوں میں دیکھی اور شیعہ سنی کتابوں نے اس حدیث کو لکھا کہ 90 انبیاء کا نام لے کر سرور کونین نے اللہ کے حبیب نے محمد احمد محمود نے یہ اعلان کر دیا جو اتنے انبیاء کی زیارت ایک ہی وقت میں کرنا چاہے اسے چاہیے وہ علی کو دیکھے. جس کے ذہن میں خیال ہو آدم کا علم کیسا ہے وہ علی کو دیکھے. جس کے ذہن میں خیال ہو یوسف کتنا حسین ہے،
ना 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 ना, मैं यहाँ रुकूंगा, एक लम्हे के लिए रोकूं अपने सुनने वालों को। यूसुफ कितना हसीन है, इतना हसीन कि मिस्र की औरतों ने देखा हाथों में फल था। सूरह यूसुफ आपने सुना हुआ है, हाथों में फल है, छुरी चली तो हुस्न का आलम यह है कि देखते देखते इतना महब हो गई कि उंगलियां कट गई। तो पीछे बैठे हुए सुना है सूरह यूसुफ? हाँ तो फिर हाँ हूँ करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। ये नौजवान मेरे साथ रहे, उंगलियां कट गई। बड़े हसीन थे यूसुफ, पालने वाले तेरे पूरे कुरान में बड़ा चर्चा ही चर्चा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। लेकिन अब मेरे नौजवान सर उठाएं और मेरे साथ हो जाएं। यूसुफ लाख हसीन थे, लेकिन किसी झूठी रिवायत में भी कोई ये नहीं दिखा सकता कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत है। समझ गए लोग, मेरे साथ हो जाए। कोई झूठी रिवायत में भी ये नहीं दिखा सकता कि यूसुफ का चेहरा देखना इबादत है। पालने वाले ये पीर महल का मजमा हैरानी से मुझे देख रहा है। चर्चे यूसुफ के हुस्न के, इबादत मेरे अली को देखना। जवाब कुदरत का आया, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। क्या वजह यह है, वो याकूब के बेटे का चेहरा है, अली मेरा चेहरा है। याकूब के बेटे का चेहरा है, अली मेरा चेहरा है ना वजहुल्लाह अली। मैं नहीं कह रहा, अली ने खुद अपने आप को वजहुल्लाह कहा, और ऐसा वजहुल्लाह के फ़अैना मा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ तुम मुंह करोगे वही वजहुल्लाह को पाओगे। आयत रखी हुई है ना कुरान में। बस ये जुमला आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कहा मैंने, मुझे तो आगे हदीस को लेकर चलना है। 90 अंबिया का नाम लेकर कायनात के मालिक ने यह कहा कि जो इन्हें देखना चाहे हबीब ऐलान कर दीजिए वो अली को देखे। इसका मतलब है कि उम्मत मुस्तफ़ा हैरान थी, आदम का इल्म कैसा होगा, यहया की इबादत कैसी होगी, ज़करिया का ज़ुहद कैसा होगा, मूसा की हैबत कैसे होगी, हज़रत ईसा परिंदा बना के ज़िंदा कैसे करते होंगे, हाथ लगा के कोड़ियों और मबरूस को ठीक कैसे करते होंगे, नाबीना को बीनाई कैसे देते होंगे, मूसा यदे बैजा दिखा के नूर कैसे चमकाते होंगे, असा को सांप कैसे बनाते होंगे। सब इंतजार कर रहे थे। ऐसे में नबी ने तबलीग के आखिरी साल अली को उठा के बुलंद करके दिखाया कि सारे अंबिया दीन पहुंचाने आए थे, आज दीन कामिल होना है। सारे अंबिया अली के पैकर में देख लो, सब मिलकर इससे बुलंद और बेहतर सलावत। मेरी आवाज़ की खस्तगी को माफ़ फरमाइएगा, और आवाज़ खस्ता है, नीयत बिल्कुल खस्ता नहीं है। हाँ, और नीयत ही ठीक होनी ज़रूरी है। सवाल ये है कि जिस उन्वान को मैंने आपके हवाले किया, किताब मुबीन और तकमील दी, इमाम बारगाह कसर अबू तालिब के अरकान मुझे मिले और कहने लगे ज़हरी साहब हमारे इमाम बारगाह की तामीरात की तकमील हो गई है। ठीक है, मिसाल पहुँचेगी, जुमला पहुँचेगा तो बात पहुँच जाएगी। हमारे इमाम बारगाह में तामीरात हो रही थी, तकमील हो गई है। मैंने कहा हुज़ूर मुबारक हो, मगर मैंने तो कभी इमाम बारगाह कसर अबू तालिब देखा ही नहीं है। मैंने जुमला कह दिया और मेरे सुनने वालों के सरों में से गुजरता चला गया। अगर मैंने ये इमाम बाड़ा देखा ही ना हो, मुझे क्या पता कि क्या कमी थी जो पूरी हो गई, क्या चीज़ बननी थी जो तकमील पा गई। अगर किसी को दीन ही ना पता हो, उसे दीन की तकमील कैसे पता चले। तो
دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج اور کل 2-4 روز دین کا کچھ تصور اپنے سننے والوں کے حوالے کر دو، اگر طبیعتیں پریشان نہیں ہو رہی تو ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے کہ پتہ چلے سننا چاہ رہا ہے۔ سب مل کے باجماعت صلوات پڑھیے نعل محمد۔ ایک اور صلوات عطیہ کر دیجیے عالم۔ توجہ رکھیے گا، ڈھونڈے دین، ادھر والوں ڈھونڈے دین نہیں۔ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ ہی مجھے بتاتا ہے کہ گفتگو آگے چل رہی ہے یا روک ڈال رہی ہے۔ توجہ کرتے رہیے گا، ان بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں اور یہ نوجوان میرے ہم سفر رہیں گے جن سے میں مخاطب ہوں اور جن کے لیے خطاب کیا کرتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، کسی مرحلہ فکر کو مجھے اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرنا ہے۔ دین کی تلاش ہے تو قرآن ہی سے پوچھیں۔ تیسرا سورہ مبارکہ آل عمران۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، پوچھیں گے قرآن سے۔ توجہ ہو جائے، آیت کا نشان 85، اور آیت کا نشان اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ میرے نوجوان بھائی اور دوست بعد میں جا کے دیکھیں اور ویریفائی کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں محنت کرے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں محنت کرے، لن يقبل منہ، اس سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ توجہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، اس سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا مالک؟ اسی سورہ آل عمران میں آواز دی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیوں کیا، بہرحال یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ نہیں بھائی، یہ پسندیدہ اور اچھا آپ کا بڑھایا ہوا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون آندھی طوفان سے گھبرایا ہوا ہے اور کون شکریلی کی طرف متوجہ ہے۔ مجھے تو قرآن کے مطالب ہی آپ کے حوالے کرنے ہوتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ پسندیدہ کا لفظ قرآن میں کہاں سے آیا؟ نہیں، ترجمہ بڑی ذمہ داری سے پیر محل کے بیدار مجمع کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو ہے ہی اسلام۔ اسلام کے علاوہ جو ہے وہ بے دینی ہے۔ میں بڑی عجیب منزل پہ لے آیا اپنے سننے والوں کو۔ اسلام کے علاوہ جو ہے بے دینی ہے، اللہ اسے دین نہیں مانتا، تو یہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین ہے اسلام، کچھ اور دین نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو اپنا دین بنائے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور دین پر ہے، بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ اور قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد اہل بیت کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ لے جاؤ کسی منزل تک اپنے نوجوانوں کو، بس میرے ساتھ رہنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے ہی، دین ہے ہی اسلام۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پکڑے، اس سے متمسک رہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو مالک اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر اپنا دین کسی اور دین کو بنائے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آواز آئی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑیے ذرا، اسی قرآن سے پوچھیں کہ بھئی کوئی ایسا بھی ہے جس کا دین اللہ قبول کرے گا؟ دل چاہ رہا ہے بھائی آپ کے حوالے کروں، یہ نوجوان میرے ساتھ قافلے میں جڑے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہوں، یہ دین تو وہ جو اللہ نے رد کر دیا، لن يقبل منہ، یہ قبول نہیں ہوگا۔ پالنے والے کس کا دین قبول ہوگا؟
یہ تیسرا سورہ سورہ مبارکہ آل عمران. اگلا سورہ سورہ نساء. وہاں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ دِينٌ، کتنا اچھا ہے اس کا دین. ایک تو دین وہ ہو گیا نا جو قبول نہیں ہوگا. اللہ اب وہ دین بتا رہا ہے. احسن یعنی اچھا، خوبصورت، پیارا، دیکھنے میں اچھا، قبول کیا جانے والا. اللہ کہہ رہا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہے. اب توجہ رہے، آیت جتنی بہتر طریقے سے دلوں میں نقش ہو جائے گی اگلی منزلیں اتنا زیادہ آسان ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ دِينٌ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ، جس کا چہرہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. سب مل کے مولا کا نام لے بھائی. وَمَنْ أَحْسَنَ دِينٌ، اس سے اچھا دین کس کا ہے جو اپنے چہرے کو ممن اسلم وجہہ، تسلیم کر لے اپنے چہرے کو للہ، اللہ کے سامنے. وَهُوَ مُحْسِنٌ. اب مجھے اپنے سننے والوں کی مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کریں گے؟ اس سے اچھا دین کس کا ہے جس نے اللہ کے آگے اپنے چہرے کو دکھایا، جھکایا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے. مجھے اس موسم میں زیادہ نہیں تھکانا اپنے سننے والوں کو، بس محسن کا معنی اگر بتا دیں تو اگلی منزل آسان ہے. کیا ہوتا ہے محسن؟ کیا ہوتا ہے محسن؟ احسان کرنے والا. سب متفق ہیں احسان کرنے والا. تو بھائی ذرا اللہ سے تو پوچھو کون ہے جو تجھ پہ احسان کر رہا ہے. دیکھیے مجھ پہ اگر آپ نے احسان کیا تو میں عاجز ہوں، ٹھیک ہے نا، میں مجبور تھا، اور جو مجبور ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بندے مجبور ہوتے ہیں، خالق تو مجبور ہو ہی نہیں سکتا. تو پالنے والے یہ کون ہے؟ آیت مکمل کر لوں پھر یہی واپس آتا ہوں. اس سے اچھا دین کس کا جو اپنے چہرے کو، ہاں میری مدد کریں گے تو بات آسان، اللہ کے سامنے چھکا لیتا ہے، اور وہ محسن بھی ہے، اور اتباع کرتا ہے ملت ابراہیم کی جو دین حنیف ہے، اور ظلم اور کفر سے بچ کے چلنے والا. تین نشانیاں بن گئی نا. اچھے دین کی کیا نشانیاں؟ پہلا اللہ کے آگے چہرہ جھکائے، دوسرا محسن ہو، تیسرا اتباع کرے دین حنیف کی جو باطل کے ہٹ کے چلنے والا دین ہے. کس کا ہے؟ ابراہیم کا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور انہی تین نشانیوں کی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. انہی تین چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کا معنی تو جانتے ہیں نا میرا نوجوان بھائی، دوست. جو اللہ کا دوست ہو وہ کیسا خلیل ہوگا. لیکن تین نشانیاں پتہ چل گئی. ایک، اللہ کے آگے جو سر جھکائے اس کا دین اچھا، جو محسن ہو اس کا دین اچھا، اور جو ملت ابراہیم پہ، دین حنیف پہ باطل سے بچ کے چلے، ظالم سے بچ کے چلے، اس کا دین اچھا. اور انہی تین خوبیوں کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. بات پہنچ گئی؟ تو پالنے والے ہمیں تو محسن تلاش کرنا ہے. وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی. دیکھیے میں آیا اور میں نے آپ کو دیکھ کے کہا حضور آپ میرے محسن ہیں، تو لوگ سوچیں گے بھائی فلاں صاحب کا سرزیدی پہ بڑا احسان ہے. پالنے والے میں تو کسی کو محسن بناؤں، یہ تو کیوں محسن کہہ رہا ہے؟ تو اب جواب اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آمادہ ہیں تو توجہ رکھیے گا. ادھر پڑھ رہا ہوں، پڑھوں آیت. محسن کون ہے؟ واقعہ یاد دلاتا ہوں ایک جملے میں، میری مدد کریں گے اور یہ کاروان مل جل کے آگے بڑھ جائے گا. کوئی قوم ایسی تھی جس پر اللہ آسمان سے کھانے نازل کرتا تھا. بھائی پڑھا لکھا مجموعہ ہے میرے سامنے، مجلسی مجموعہ ہے. یہ واقعات انبیاء کے قصے کہانیاں آپ جانتے ہیں. کون سی قوم ہے؟ ہاں مل کے بولیں گے تو بات بنے گی. کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل. جناب
मूसा की कौम बड़ी चहीती बड़ी लाडली कौम है अल्लाह की, आसमान से खाना आता था, लेकिन हर रिस्क, जुमला कह रहा हूँ जो लफ्ज़ों के खरीदार है वो आमादा हो जाए, हर रिस्क हर नेदे को रास नहीं आता, हर रिस्क हर नेदे को रास नहीं आता। तो मलकूत का रिस्क इन्हें रास नहीं आया कि अल्लाह के पालने वाले हमें तो ज़मीन से खाना चाहिए। अब तवज्जो, बात इशारे में करके गुजर जाऊंगा, तशरीह नहीं करूंगा, हमें तो जमीन से खाना चाहिए। कहा अच्छा देते हैं जमीन से खाना, मगर जमीन किसी की मिल्कियत है। कहाँ बैठे हो पीर महलवानों? जमीन 5 दिन आदम और अली की गुफ्तगू आपके हवाले कर चुका हूँ, जमीन किसी की मिल्कियत है। तो देखो हम रिस्क तो फराहम कर देंगे, तुम हमारी बड़ी चहीती और बड़ी लाडली कौम हो, लेकिन तुम्हें एक वादी में जाना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा सूरह मुबारक बकरा, आयत तफसील से रखी हुई हैं। जाओ इस कुरिया में, इस वादी में जाओ। अरीहा नाम था वादी का, नाम याद रहेगा? क्या नाम है? नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या नाम है? क्या नाम है भाई? आपसे पूछ रहा हूँ। अरीहा। जागते रहेंगे तो पता चलेगा बहुत पैगाम पहुँच रहा है आपको। अरीहा नाम की वादी उस वक्त मुमलिकत शाम में होती थी, आज नक्शों की तकसीम की वजह से फ़लस्तीन में पाई जाती है। हज़रत मूसा की कौम चली, अरीहा नामी वादी में आई, अल्लाह ने कहा जो चाहे खाओ, लेकिन शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, चूँकि हम पहले आसमानों से रिज़्क़ भेजते थे तो सजदा कराते थे। तवज्जो तवज्जो, थकना नहीं, और बेदारों के लिए बेदारों का जुमला सुनना है। तो पहले सजदा कराते थे अपने नाम का, लेकिन अब इस वादी में जाओ तो उदखुलुल बाब सुज्जदन, और ये जो सामने दरवाजा है पहले से सजदा करे फिर रिज़्क़ खाना। पहले से पीछे वाले भाइयों पहले से सजदा करो। मैंने तफसीर के बारे में लड़ने शुरू किए, भाई ऐसा क्या था तो मेरे 11वें इमाम का फरमान नजर आया, फी बाब यमीनन व यसारन मिसाल मोहम्मदन व अलीयन। उस दरवाजे के एक तरफ और दूसरी तरफ, एक तरफ अली की तस्वीर थी, एक तरफ नबी की तस्वीर थी। इस नारे पे तो एक जुमला भी और नहीं आगे बढ़ सकता। तवज्जो कीजिएगा, अपने सुनने वालों को बहुत नाजुक मरहला फ़िक्र पे ले आया हूँ। एक तरफ अली की तस्वीर, एक तरफ नबी की तस्वीर। परवरदिगार ये खिलते हुए चेहरे सलामत रखे, यही खून के ताहिर होने की दलील होती है। और ये हदीस नबवी है, ये मैं जोश खिताबत में नहीं कह रहा। जिक्र अली पर अली वाले का चेहरा खिल ही जाना चाहिए। एक तरफ नबी की तस्वीर, एक तरफ अली की तस्वीर। जाइए और शिया सुन्नी उलमा से सवाल कीजिए, कितनी नमाजें पढ़ते थे बनी इसराइल? तो आपको जवाब मिलेगा 50। आप कितनी पढ़ते हैं? 50 नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है दरवाजे का सजदा करते हुए जाओ। क्या होगा? नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, तुम्हारी खताओं का हम माफ़ कर देंगे। भाई कमाल है, आज का मुसलमान 5 नमाजें पढ़कर जन्नत का ठेकेदार बना हुआ है, और जो 50 नमाजें पढ़ रहे हैं अल्लाह ने उन्हें मग़फ़िरत की दलील नहीं दी, मगर जब अली की तस्वीर पे सजदा किया अल्लाह कह रहा है अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। तादाद में तशरीफ़ फरमाया, आप ऐसी सलवात तो पढ़िए कि कम से कम इमाम बाड़े के दरवाजे तक आवाज़ जाए। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह कह रहा है
وَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ بھائی 50 نمازیں پڑھ رہا ہے مالک، تیرے سجدے کر رہے ہیں، لیکن تو نے خطا معاف ہونے کی سند نہیں دی۔ کیا یہی تو سمجھانا ہے آنے والی امتوں کو؟ خطائیں، جملہ آپ کے حوالے، خطائیں عبادتوں سے نہیں ولایت سے معاف ہوتی ہیں۔ یہی سے جو جائیے میرے ساتھ، خطائیں عبادتوں سے نہیں ولی کی ولایت سے معاف ہوتی ہیں۔ تم سجدہ کرتے جاؤ، چلتے جاؤ، سنزید و توجہ، جہاں تک لانا تھا وہاں تک آ گیا، سنزید للمحسنین، اور اللہ تم سجدہ کرو گے کیا کرے گا؟ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ سنزید للمحسنین، اور جو محسن ہیں اللہ انہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی خطائیں تو معاف کرے گا مگر اس کے علاوہ بھی انعام دے گا۔ پالنے والے بھائی سجدے تو کر رہے ہیں دروازے کو، یہ محسن کون ہے؟ تو پھر میں 11ویں امام کی تفسیر کی طرف گیا تو آواز آ رہی تھی، دیکھو لوگوں کو نبی کی تصویر پہ اعتراض نہیں تھا، اعتراض ہونا تھا علی پر، تو ہم نے آیت رکھ کے بتا دی سنزید للمحسنین۔ امام نے فرمایا الذین لم یرتابوا فی فضل علی، وہ جو علی کے فضائل پہ شک نہ کرے، اللہ کہتا ہے یہی تو میرا محسن ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو میرا۔ اچھا جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا ممبر پہ، اسے دبتی ہوئی آواز بھی صاف پتہ چلتی ہے اور حیرت والا چہرہ بھی نظر آتا ہے۔ تو بزرگوں سے معذرت کر کے اپنے نوجوانوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ لیجیے بابا جب آئیے، بسم اللہ توجہ کیجیے بھائی، دیکھتے میری طرف رہیے، مجھے دین آپ کے حوالے کرنا ہے اگر دل چاہ رہا ہے تو توجہ رہے۔ میں بہت تیزی سے اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ بھائی جہاں جگہ ملے تشریف رکھتے رہیے، تقریر اپنے آخری مرحلے اور نتیجوں سے قریب ہو گئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جو محسن ہے، اچھا میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات اب بالکل نوجوان ذہنوں میں واضح ہو کے اتر جائے۔ میں نے عزیز علی رضا کو آپ کے سامنے بھیجا کسی کام سے، کام تھا میرا، بھیجا ہے میں نے اپنا میسنجر، بھیجا ہے میں نے اپنا میسنجر، اپنا پیغمبر، اپنا پیغام دینے والا۔ اچھا آپ نے میرا پیغام سنا، اپنا جواب دیا کہ اللہ جی اسد زیدی صاحب سے کہیے ان کا کام ہو جائے گا۔ میں کچھ دن بعد آپ کو ملا، میں نے کہا حضور بہت شکریہ، آپ کا احسان ہے مجھ پر، آپ نے میرے بھیجے ہوئے کی قدر کی۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے میرے بھیجے ہوئے کی، آپ نے میرے بھیجے ہوئے کی قدر کی۔ بس بتانا یہ پالنے والے تو کبھی بندوں میں آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا انہوں نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے علی کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، جس نے مجھے دیکھے بغیر علی کو مانا، میں نے کہا مجھے دیکھے بغیر مانا، تو نے مجھے دیکھے بغیر علی کے فضائل کا اقرار کیا، یہی تو میرا محسن ہے۔ صلوات اور پڑھ دیجئے تاکہ آمد و رفت کا سلسلہ رک جائے۔ اللہ کہتا ہے میرا محسن ہے۔ کون؟ الذی لم یرتابوا فی فضل علی، جو علی کے فضیلت میں کیا نہ کرے، اتنی آہستہ بولیں گے تو مجھے ہی شک ہو جائے گا، علی کی فضیلت میں شک نہ کرے۔ اب میں کیا کروں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں بہت تفصیل سے عرض کرتا کہ قرآن میں شک کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ہے شک، قرآن میں بہت جگہ آیا، اور ایک ہے ریب۔ اب میں کیا کروں، اردو زبان کی مجبوری ہے۔ الذین لم یشکوا فی علی نہیں، جنہوں نے علی میں شک کیا یہ نہیں کہا اللہ نے، لم یرتابوا،
जिनके पास अली की फजीलत में रैब नहीं है। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अरबी की बहस आपके हवाले करूं, एक जुमले में आसान करके, और इससे आसान करके नौजवानों के हवाले कर नहीं सकता। शक और रैब में फर्क क्या है? जानना पीर महल वालों, जो जबान पे आ जाए वो शक होता है, जो दिल में रह जाए वो रैब होता है। जो जबान पे आ जाए, जो जबान पे आ जाए शक होता है, जो दिल में रहे रैब होता है। पढ़िए कुरान, वक्त होता तो एक एक आयत पढ़ के आपके हवाले करता, मगर मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना है। कुरान में अल्लाह 5 लोगों को जहन्नम भेजते हुए कह रहा है, काना अन्नहुम फी शक्किन मुरीब। पालने वाले क्यों भेज रहे हैं जहन्नम में? आवाज आई, इनके दिल में शक भी था, रैब भी था। तो मोहसिन मिल गए मेरे नौजवान भाइयों, मोहसिन मिल गए है ना। मोहसिन वो है जो अली के फजाइल में शक न करे। अब तर्जुमा आपके हवाले और बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूँ। वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मोहसिन। उससे अच्छा दीन किसका है? जो सजदा अल्लाह को करे और अली की फजीलतों में शक न करे। सजदा अल्लाह का करे, अली की फजीलत में शक ना करे, और बातिल से दीन हनीफ पे बच बच के चलता रहे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। जागना भाई मेरे नौजवानों, इसीलिए अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया है। क्यों? इब्राहीम शक करने वालों में नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इत्मीनान रखने वालों में थे। लेकिन मुझे अगर वक्त ज़्यादा ना हो गए तो 2 लम्हों में एक आयत और आपके हवाले कर दूँ। दीन तो पहुँच गया ना, पर मुझे आयत एक ही पढ़नी है जिसके लिए सारी मेहनत करना होगा। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम और कोई दीन नहीं। उसके नज़दीक दीन है ही इस्लाम। जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन अपनाए अल्लाह उसका अमल कबूल नहीं करेगा। अच्छा दीन वो है जो अल्लाह के आगे सर को झुकाए, अली के फजाइल में शक न करे, बातिल और बुराइयों से यानी अमल साले करता रहे और बुराइयों से बच बच के चलता रहे। और इन्हीं खूबियों के बिना पर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। ये तो था एक नबी का तस्वीर। और मुझे तो 90 अंबिया का तस्करा करना है, तो मैं वो आयतें चुन चुन के आपके हवाले कर रहा हूँ कि जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंबिया साथ आ जाए और मेरा मौजूद तेज़ी से चल जाए। तो अब तवज्जो कीजिएगा, सूरह मुबारक अनाम, छठा सूरह कलाम मजीद का हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत का तस्करा। अभी तक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, अब हज़रत इब्राहीम का तस्करा है। और तस्करा सुनिए, महफूज कीजिए आयत, ताकि मैं अपनी मंजिल और नतीजे तक आगे बढ़ जाऊँ। इरशाद है, दाएं बाएं देखना छोड़िए, मुझे देखते रहिए क्या कह रहा हूँ। इरशाद है, वो वहबना लहू, अब गिनना है मेरे साथ ताकि हिसाब में गड़बड़ ना हो जाए। वो वहबना लहू इसहाका व याकूबा। कितने नबी हो गए? कितने? 2। वो वहबना लहू किसे दिए? हमने अता किए इसहाक और याकूब। किसे? इब्राहीम को। वो वहबना लहू, एक होगा इब्राहीम, एक इसहाक, एक याकूब। कितने नबी हो गए? कुल्लन हदैना व नूहन हदैना। कितने हो गए? 4। वमिन क़िबलो वमिन ज़ुर्रियतिही, उनसे पहले वालों को भी हिदायत दी और इनकी ज़ुर्रियत को भी हिदायत दी। ठीक है। व इसहाका व याकूबा व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व सुलेमान व दाऊदा। पहले कितने थे? 4 और 6 इस आयत में गिनवाए। सुलेमान, दाऊद, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून। कितने हो गए? 10। आवाज दी, कज़ालिका नुज्ज़िल मोहसिनीन, और अल्लाह मोहसिनों को ऐसे ही जज़ा देता है। 10 नबियों का नाम लेकर कुरान कह रहा है ये 10 नबी मोहसिन थे। और मोहसिन की तारीफ क्या है? अल्लज़ीना लम यरताबू फी फ़ज़्ल अली। इसका मतलब है तशबीह सिर्फ अली में नहीं है। आप सलामत रहे, मुश्किल बात जिन तक पहुंच गई है।
वाक़या मुकम्मल करो और अपनी मंजिल तक आ गया। आयत का अगला टुकड़ा बड़ा अजीब है, व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियास। अब कितने हो गए? 14 के मानने वालों को तो बोलना चाहिए। हाँ तवज्जो, बात खत्म हो गई। व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियास। ज़करिया, याहया, ईसा, इलियास, 4 नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की इन पर सलामती हो और हमारा सलाम। तवज्जो, 4 नबी। वाक़या सुनिए, हज्जाज इब्ने यूसुफ का दरबार है। इतना बड़ा जालिम था ये मलऊन कि ला याकुल खुबुस इल्ला मुहम्मरन बिदम हाशिमी, और रोटी नहीं खाता था जब तक किसी सैयद के खून से रोटी ना गुदवा ले, आटा ना गुदवा ले। इतना बड़ा जालिम। अब जो सादात हैं, और बिलखुसूस अगर कोई ज़ैदी सादात है मेरे सामने, तो उन्हें जुमला बिलखुसूस हदिया कर रहा हूँ। हज़रत ज़ैद शहीद हज्जाज के दरबार में, ठीक है, हज़रत चौथे इमाम के फर्जंद ज़ैदी सादात के जज हज़रत ज़ैद शहीद दरबार में खड़े हैं। और ऐसे में उसने पूछा कि भाई तुम सादात ये कहते हो कि तुम नबी के बेटे हो, हालांकि तुम तो नबी के बेटी के बेटे हो, क्योंकि हसनैन करीमैन शहजादी के बेटे हैं, तो तुम तो नबी की बेटी के बेटे हुए, नबी के बेटे कहाँ से हुए? दलील दो कुरान से, वरना यही कत्ल कर दूंगा। अच्छा घबरा गए यहाँ भाई? जवाब तो जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम ने देना है ना, तो आप तो मेरे साथ रहें ताकि मैं वो जवाब आपके हवाले करके और मिंबर से इजाज़त ले लूँ। क्या कह रहा है कुरान से? दलील दो किस चीज़ पे? कि हसन हुसैन नबी के बेटे हैं। लब जुड़े जनाब ज़ैद के, एक एक मोमिन बेदार हो जाए। अभी बोलने लगे थे, इसे ख्याल आया कि कुरान में सूरह मुबाहिला में अल्लाह ने कहा अबनाना व अबनाकुम। तवज्जो तवज्जो, थकना नहीं मेरे भाइयों, 2 लम्हे के लिए ना थकना। क्या इसे कुरान में ख्याल आया? अल्लाह ने कहा हुआ अबनाना व अबनाकुम, तुम लाओ अपने बेटे, हम लाए अपने बेटे। कहने लगा ज़ैद 1 मिनट, खबरदार आयत मुबाहिला नहीं पढ़नी। तवज्जो, आयत मुबाहिला नहीं पढ़नी। कोई और आयत सुनाओ। मुस्कुराया और अब जुमला आपको हदिया करो। मुस्कुरा के कहने लगे बदबख्त सुन, कुरान हमारे घर में उतरा है, तुम्हारे घर में नहीं। हमें पता है कौन सी आयत पढ़नी है। मेरे जद हज़रत ज़ैद शहीद ने, अब जाहिर है कि थोड़ा सा तो फ़ायदा उठाऊंगा ना ज़ैदी होने का, तो जुमला अपने सुनने वालों को हदिया कर रहा हूँ। आज जनाब ज़ैद ने एक मरतबा आवाज़ देखेगा, सुन यही आयत पढ़ी जो मैंने आपके हवाले की। वहाब ने लहू इसहाक़ व याक़ूब व अय्यूब व यूसुफ़। आगे बढ़ के व ज़करिया व याहया, आयत क्या है? व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियास। बात किसकी हो रही है? हज़रत इब्राहीम की नस्ल की। भाई बारीक बात है, मैं शरा नहीं करूँगा। बात किसकी हो रही है? हज़रत इब्राहीम की। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हज़रत इब्राहीम की नस्ल की। आयत कह रही है व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियास। आयत थी ज़करिया, याहया, ईसा, इलियास। जनाब ज़ैद ने आयत में से एक लफ्ज़ कम करके पढ़ा, व ज़करिया व याहया व इलियास। ईसा का नाम नहीं लिया। पता नहीं कौन हैरान हो जाएगा, कौन परेशान हो जाएगा, किसका चेहरा विलायत आले मोहम्मद से खिल जाएगा। मैं तो जुमला पीर महल के इज़्ज़तदार मजमे के हवाले कर रहा हूँ। कहने लगा खबरदार, बनी हाशिम हो के कुरान गलत पढ़ते हो। कि मैंने गलत क्या पढ़ा है? कहने लगे भाई आया था ज़करिया व याहया व ईसा व इलियासा। कि मैंने क्या पढ़ा? का ज़करिया व याहया व इलियासा। का बात किसकी हो रही है? का इब्राहीम की नस्ल की। का ईसा कहाँ से आए? उनका तो कोई बाबा ही नहीं है। थक गया है मेरा मजमा। नारा बता रहा है कि थक गए हैं आप। सब मिलके आखिरी मोमेंट तक हाथ बुलंद करके छोड़ दिया मैंने मेंबर आपके तसव्वुरात से पहले। व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियास। कहने लगा बदबख्त, बात तो हो रही है इब्राहीम की नस्ल की। भाई ये ईसा कहाँ से आए? ईसा के तो बाबा ही नहीं है। अब पता तो था कि ज़िल्लत का जूता ताजियाना पड़ा कहाँ है। सर झुका के कहने लगा वो मिन क़िबल उम्मिही, वो अपनी माँ की तरफ से शामिल है। कह क्या मार के ज़ाहिर लगा, बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती? मरियम का बेटा नस्ल इब्राहीम में माँ की निस्बत से आ जाए, फ़ख्र मरियम के बेटे मोहम्मद की नस्ल में न आए।
बुलंद सलावत भी भेज दीजिए आले मोहम्मद की। पर ये दीन का तसव्वुर याद रहेगा और मैं कल यहीं से मुसलसल नस्ल इब्राहिम यहीं से कैसे जनाब मरियम की मैं इब्राहिम के तस्करे तक आपको बेसबब मिल रहा है। आज जिस हस्ती का तस्करा है, हुसैन ने जब ने उस लाल को मख्तल में भेजा तो एक आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इब्राहिम। अल्लाह ने चुन लिया है आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को, आले इमरान को। वो आया है जो सर से पांव तक अल्लाह के महबूब की शबीह। मैंने किताबों में ये जुमले देखे हैं सैयद शहदा के कि जब कभी हम नाना का चेहरा देखना चाहते तो अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। सुनेंगे मेरे भाई से बहुत तफसील से मसाइब आप, मगर तस्वीर के दो जुमले गम के सुन लीजिए। उस अली अकबर का पुरसा देना है जिसके लाशे पे हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रोया। ये सोच के रो लेना पर्देदारों में अली अकबर को पालने वाली बीबी आई हुई है। बुलंद आवाज़ से गिरिया किया करो आज़ादारों। एक माँ को आपका ये बुलंद आवाज़ से रोना बहुत पसंद है। एक बहन है जो आज अपनी फूफी से पूछ रही है, फूफी अम्मा ये किसे रो रहे हैं? जनाब आलिया पलट के कहती हैं सकीना ये तुम्हारे भैया अली अकबर को रो रहे हैं। बच्ची पलट के कहती है फूफी अम्मा काश ये करबला में होते सकीना को रोने पे तमाचा न मारा जाता। कोई जवान ऐसा ना हो जिसका हाथ सीने पे पड़ता ना नजर आए। आज हुसैन के जवान का तस्करा है। आज भी बनी असद वाले हुसैन के रोज़े पर अपने जवान बेटों को लेकर नहीं आते। जानते हो आज़ादारों वजह क्या है? शायद तुम्हें सुन के बहुत रोना है। वो आके ये कहते हैं आका हम शर्मिंदा हैं, हमारे जवान जिंदा हैं, आपका अकबर मारा गया। वो करे ना मातम जिसके हाथ पाबंद सलासिल नहीं। जी खोल के पुरसा देना आज़ादारों। हुसैन के घर के करीब एक शख्स रहा करता था जिसका 18 साल का बेटा था। बहुत मन्नतों मुरादों से पाया था, फूफियों का बड़ा लाडला था, माँ का राज दुलारा था। एक दिन उस बच्चे की आंख में कांटा चुभ गया। अज़ादारों बहुत तबीबों को दिखाया और लेकिन कहीं से अफाका ना हुआ। आखिर में हुसैन के दरवाजे पर आया और रोता जाता है और कहता जाता है मौला मौला मैंने बड़ी मन्नतों से इस बेटे को पाया है, मौला मेरी सारी कमाई लुट जाएगी, मैं तबीबों से मायूस हो चुका, आप चल के मेरे बेटे को शिफा दे दीजिए। अज़ादारों हुसैन चले। अब जो सहने खाना में आए ना, देखा 18 बरस का कड़ियल जवान है और वो जमीन पे एड़ियां रगड़ रहा है। हुसैन ने उसका सर अपने जानू पे रखा, आहिस्ता से कांटा निकाला, अपने हाथ को उसकी आंखों पे फेरा। बाप के चेहरे पे देखते जाते हैं, बाप का चेहरा मुतमईन होता जाता है। अज़ादारों जब बच्चा ठीक हो गया ना, हुसैन ने पूछा अब तू मुतमईन नजर आता है? कहा मौला मेरी तो सारी कमाई उतर जाती, मेरा एक ही बेटा था। हुसैन ने अज़ादारों मामा उतार दिया, मुंह पे तमाचे मार के कहने लगे सोच अगर तेरा एक ही बेटा होता, सिर्फ बेटा ना होता, सर से पांव तक नबी की शबी होता, माँ का राज दुलारा होता, उसे ज़ैनब ने पाला होता और आंख में कांटा नहीं सीने में बरछी का फर। वो आंख कितनी खुशनसीब है जो अकबर के तस्करे पे रो रही है। मैं दुआ दे सकता वो आंख कभी ना रोए जो इस गम में रोती है। अजर कमल अल्लाह। सुन लो दो जुमले हैं। आज मुहर्रम आ गई है, ये सोच के रोना कि जब अज़ाखाने सजे थे और जो मेहमान तुम्हारे घरों में आए थे, आए अज़ादारों वो 4 दिन के मेहमान रह गए।
अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। अल्लाह जाने किससे जिंदगी वफा करे, किससे जिंदगी वफा ना करे, मगर आज जी खोल के अली की बेटी को पुरसा देना है। जनाब उम्मे लैला रिवायत करती हैं, रात के वक्त अली अकबर का झूला जहां रखा होता था, उस झूले पे एक साया आ जाता था, चौंक के उठ जाती, आवाज देती कौन आया है। एक आवाज आती थी, उम्मे लैला जरा आहिस्ता, मेरा अकबर अभी सोया है। ऊंची आवाज से है करना आजादारो जो पुरसा देने आया, मेरा अकबर अभी सोया है। काका कनीज को बुला लिया होता, आपने सहमत क्यों की? उम्मे लैला मेरे जहन में ख्याल आया, शायद मेरा अकबर रात के वक्त प्यासा हो। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, मौला अभी तो अकबर झूले में है, आपको प्यास का इतना ख्याल है, अरे कल क्या आलम होगा जब ये अकबर मैदान से आके कहेगा, बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए। अजरुकुम अल्लाह। लो ज़ादारो, आशूर का दिन आ गया। सुबह हुई तो आशूर का आगाज अली अकबर की आजान से हुआ। अली की बेटियों ने आके कहा, हुसैन अपने अकबर से कहो हम नाना की आवाज में आजान सुनना चाहते हैं। अज़ादारो, अली का लाल अली अकबर के पास आया। हम शक्ल नबी को ऊपर से नीचे तक देख के कहा, अली अकबर तुम नबी की शबी हो बेटा, और मेरी बहनें ये चाहती हैं कि वो नबी की आवाज में अजान सुने। सर को झुका के कहने लगे, बाबा आपकी बहनें तो मेरी आवाज सुने, मगर अकबर मदीने में एक बहन को छोड़ आया। लोज़ादारो, अली अकबर गुलदस्ता अजान पे आए। पहली तकबीर का कहना था, वहां मदीने में अकबर के नक्शे पा पे फातिमा सुगरा का रुखसारा था, अल्लाह अकबर की आवाज आना था। सुगरा की आवाज आई, दादी मेरे भैया की खैर। रोते आना ज़ादारो। दूसरी तकबीर हुई, फिजा दौड़ती हुई आई, आका अली अकबर से कहिए अली की बेटी को वश आ गया। लो अज़ादारो, दिन ढलता गया, एक एक सिपाही हुसैन का जाता है। अकबर बार बार बाबा से इजाजत लेते हैं, हुसैन के कह के टाल देते हैं। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। का अकबर मैं इजाजत न दूंगा, पहले माँ के खेमे से इजाजत ले। अज़ादारो, शहजादा चल के माँ के खेमे में आया। माँ का निगाह चेहरे पे पड़ी और रो के कहने लगी, अकबर मैं जानती हूँ किस लिए आए हो, मगर उम्मे लैला किस हक से इजाजत दे। इजाजत तो वो दे जिसमें 18 बरस वाला है। अजरुकुम अल्लाह। हो गई मजलिस। अज़ादारो, आखिरी जुमला सुन लो। एक मर्तबा अकबर सर को झुकाकर अली की बेटी के खेमे में आके बैठ गई। मेरी शहजादी नमाज पढ़ रही है। नमाज को मुकम्मल किया, सर उठाया, अकबर मेरे लाल कुछ पूछना चाहते हो? का फूफी अम्मा बस एक सवाल है। का कहो मेरे लाल। का फूफी अम्मा आप अफजल हैं या दादी ज़हरा? आप अफजल हैं या दादी ज़हरा अफजल है? तड़प के मेरी बीवी खड़ी हो गई। अकबर ये क्या पूछ लिया? कहाँ ज़हरा, कहाँ ज़हरा की कनीज़ ज़ैनब? क्या फूफी अम्मा अगर फिर मैशर में दादी ने पूछ लिया, ज़ैनब तुझे मेरा अकबर मेरे हुसैन से ज्यादा प्यारा था? अज़ादारो, अकबर को सवार कराया हुसैन ने। नहीं पढ़ सकूंगा इससे ज्यादा मसाइल, न तबीयत इजाजत दे रही है न हौसला, बस 2 जुमले सुन लेना। अकबर को सवार कराया, अकबर चले मैदान को, हुसैन टीले पर आए अकबर की जंग देखने। ऐसे में जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, अम्मा फिजा खैमे के दरवाजे पर खड़ी हो जाना है, भाई के चेहरे पर नजर रखना, अकबर का मामला है। अज़ादारो, देखना मेरी तरफ। जनाब ज़ैनब की निगाहें फिजा के चेहरे पर, फिजा की निगाहें हुसैन के चेहरे पर, हुसैन की निगाहें अली अकबर पर। अम्मा फिजा, जब हुसैन के चेहरे के आसार बदल जाए समझना वक्त दुआ आ गया। वहां फौजों ने अकबर को घेरा,